نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نوجوانان توحید و سنت گجرات کے اراکین کو اتنی خوبصورت اور عظیم الشان کانفرنس منعقد کروانے پہ دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
آپ سب لوگ میری دعا پہ آمین کہیں کہ اللہ ان نوجوانوں کے علم و عمل میں عمر میں کاروبار میں اور رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں۔ میں ہر قسم کی ہٹ دھرمی دھڑے بندی اور بغض و عناد سے ہٹ کے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ کسی فرقے کو زج کرنا، ہٹ کرنا، کسی کے بزرگوں کے خلاف بدزبانی کرنا، یہ علماء کا شیوہ نہیں، جاہلوں کا کام ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، خاص کر کے نوجوان، وہ بھی ہر قسم کی دھڑے بندی، ہٹ دھرمی، ضد و عناد کو چھوڑ کے میری باتیں سنیں گے۔ اگر میری باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں، عقل کے مطابق ہوں، تو انہیں تسلیم کر لیجیے، ورنہ باہر نکل کے انہیں دیوار پہ مار دیں۔ میری بات کو ماننا آپ پر فرض نہیں۔ میں اگرچہ بیان تو مسئلہ توحید کروں گا، لیکن اس میں رنگ تھوڑا سا اپنے نبی کی سیرت کا بھی دوں گا، عظمت صحابہ کا بھی دوں گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی 63 بہاریں اس دنیا میں گزاری تھی۔ کتنی؟ 63۔ ان 63 برسوں میں 40 سال آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے
جو آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا تھا. اور 23 سال آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد گزارا تھا. ان 23 سالوں میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. جو حصہ آپ نے زندگی کا نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا وہ بھی پاکیزہ ہے. مقدس ہے. اور جو حصہ آپ نے نبوت کے ملنے کے بعد گزارا وہ اتنا مقدس ہے کہ رب نے قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی. لا عمرو کا، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے. ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لا امرو کا پنجابی میں معنی کرتے ہیں شالا جیندہ رامے. جو حصہ آپ نے نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس میں آپ کا بچپن ہے، اس میں آپ کا لڑکپن ہے، اس میں آپ کی جوانی ہے، اس میں آپ کا بکریوں کو چرانا ہے، تجارت کے لیے شام کی طرف سفر کرنا ہے، اس میں آپ کی شادی ہے، غمی ہے. ہے انتظام؟ جنریٹر چلے گا؟ اچھا لائٹ آ گئی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ جو حصہ آپ نے زندگی کا نبوت کے ملنے سے پہلے گزارا اس حصے میں آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی شادی ہے، آپ کی غمی ہے، اس میں آپ کی تجارت ہے، بکریوں کا چرانا ہے. لیکن زندگی کے اس حصے کے ساتھ مکے کے کسی ایک آدمی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب نے مانا. اپنے باپ دادا سے بڑھ کے انہوں نے آپ کا احترام کیا، اپنے بچوں سے زیادہ انہوں نے آپ سے پیار کیا. اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ جب آمنہ کے لال کسی سڑک پہ آتے ہیں، کسی گلی سے گزرتے ہیں، کسی چوک میں آتے ہیں تو مکے کا کوئی آدمی آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا،
ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ یہ میں زندگی کے کس حصے کی بات کر رہا ہوں؟ زور سے بولو۔ میں نے تقریر ایسی کرنی ہے کہ کل گجرات میں آپ سے کوئی پوچھے بھائی وہ آیا تھا تو کیا کہہ کے گیا تھا، تو آپ سنا دیں کہ یہ کہہ کے گیا تھا۔ کبڈی نہیں کھیلنی۔ تمہارا مزاج بن گیا ہے تقریریں سنتے اور صبح کہتے راتی مولوی صاحب آئے نے جی پھٹیاں بن چھٹیاں نے آخیا کی نے آخیا سن کوئی پتہ نہیں، رانوں پہ ہاتھ مارے ہیں، بازو چڑھائے ہیں، منہ سے جھاگ بہنے لگی ہے، مناظروں کے چیلنج کیے ہیں، دوسروں کے بزرگوں کے 4-5 فتوے لگائے ہیں، بڑا مولوی ہے جی۔ اب تقریر نام رہ گیا بس زبانی کا، تقریر نام رہ گیا دوسروں کے بزرگوں پر بس زبانی کرنے کا۔ 40 سال ان لوگوں نے آپ کو صادق مانا، امین مانا، اپنے جھگڑوں میں ثالث مانا، جج مانا، فیصل مانا، قاضی مانا، اپنے باپ دادا سے بڑھ کے آپ کا احترام کیا، اپنے بچوں سے زیادہ انہوں نے آپ سے پیار کیا۔ سمجھانا آج میں نے یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میرا نبی کون سی بات منوانا چاہتا تھا کہ یوں ہی وہ بات میرے نبی کی زبان مقدس سے باہر نکلی تو دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں، راستے میں پھول بچھانے والوں نے کانٹے بچھانے شروع کیے، گلے میں ہار ڈالنے والوں نے رسی ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی زبان باہر نکل آئی، جوتیوں میں خون جم گیا۔ وہی لوگ جو 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے تم صادق ہے، انہوں نے کہا انت کذاب۔ جو لوگ کبھی آپ کو ثالث اور جج مانتے تھے انہوں نے کہا انت مجنون، انت شاعر، انت ساحر، تو جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، الیاذ باللہ کذاب ہے۔ کون سی بات میرا نبی منوانا چاہتا ہے جس کو ماننے کے لیے مکے کے مشرک تیار ہو؟ زور سے بولو۔ ابو جہل نے اس بات کو نہیں مانا۔ اتنی کڑوی بات ہے اور اتنا تلخ کلمہ ہے، جن کو سمجھ نہ آئے نا ان کے لیے وہ بات اتنی کڑوی ہے اور وہ بات اتنی تلخ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے نہیں مانا، کہنے لگا اچھا تیرا جادو آسمان پہ بھی چل گیا ہے۔ مٹھی میں کنکریاں پکڑ کے لایا، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آمنہ کے لال نے کہا میں دساں کہ مٹھی والی شے آپ دسے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا۔ میرے نبی گلی سے گزرنے لگے، پتھروں نے میرے نبی کو سلام کر لیا، اس نے نہیں مانا۔ میرے نبی ایک وادی میں پہنچے، جانوروں نے میرے نبی سے کلام کر لیا، جانور بولنے لگے، اس نے نہیں مانا۔ اور میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک کبھی کڑوے کنویں میں ڈالی تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، پر اس نے نہیں مانا۔ کڑوا اتنا ہے وہ مسئلہ جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جن کو سمجھ نہ آئے ان کے لیے وہ تلخ ہے، کڑوا ہے، اور جن کو سمجھ آ جائے ان کے لیے پھر میٹھا اتنا ہے کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جائے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے، نمک ملا پانی
اس کے जख्मों पे छिड़का जाए, मक्के की नुकेलदार जमीन पर उसको घसीटा जाए और दूसरे दिन फिर तपते हुए कोलों पे लाया जाए और शाम के टाइम मालिक पूछे बिलाल फिर भी उसका नाम लेगा, तो बिलाल मुस्करा के कहता है जालिम उसको मानने का जितना मजा आज आया है आज तक आया ही नहीं है। मीठा इतना है। साहिब ज़ौक़ लोग मेरे सामने, पढ़े लिखे लोग सामने हैं, नौजवान सामने हैं। अल्लामा इकबाल ने बिलाल को तपते हुए कोलों पे यूं तड़पते हुए देखा ना, तो अल्लामा इकबाल कहता है चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठा के हिजाज में लाया। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठा के हिजाज में लाया। एक जुमला कहना चाहता हूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि जाया हो जाए। भैंस के आगे बीन बजाना हो जाए तो थोड़े सिरों के उत्तू गुजर जाए। जुमला बड़ा मजेदार है, ये पसंद आ जाए तो फिर सुभान अल्लाह इतनी जोर दी आखनी कि दूर दूर तक सुभान अल्लाह की आवाज चली जाए। ठीक है, हबशे से उठाया, मंडियों में बिकवाया, फिर बिकवाते बिकवाते मक्के में पहुंचाया, फिर मक्के से उठा के मेरे नबी के कदमों तक लेके आया। और जब बिलाल मेरे नबी के कदमों तक आया तो फिर बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में पहुंचा के रखी। चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, चमक उठा, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठा के हिजाज में लाया। वो आस्था न छुटा तुझसे एक दम के लिए और किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए। और गुजरात वाले वो सितम दे भी मजे होंगे, जुल्म दे भी कदी मजे होए। अल्लामा इकबाल कहता है वो आस्था न छुटा तुझसे एक दम के लिए और किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए। और जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मसला मीठा इतना है कि जिनको समझ आ गई उसे दो जानवरों से बांध दिया गया और कहा गया सुमैया तुम सिनफे नाजुक हो, तुम्हारे नाजुक नाजुक से हाथ हैं, छोड़ दो उन्हें, वरना मैं मुखालिफ सिमत में जानवर दौड़ा के तुझे दो टुकड़े कर दूंगा। और सिनफे नाजुक ने कहा जालिम ये सुमैया की एक जान है, 100 जानें भी होती तो मक्के के चौराहे पे तड़प तड़प के निकल जाती, मोहम्मद अरबी का दामन कभी ना छोड़ती। कौन सी बात मेरा नबी मनवाना चाहता है, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? और इस पर फिर गौर भी करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप मान के उठें ना, बिल्कुल नहीं। इस पे तदब्बुर करें, फिक्र करें, सोचें, गौर करें, उलमा से पूछें। एक मिनट पहले कहते थे तू सादिक है, मेरा नबी कोहे सफा पे खड़ा है, पहला दिन ने लोगों को इकट्ठा किए, दामन में लोग इकट्ठे हो गए, जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, अपने भी, पराए भी, और मेरा नबी कहां खड़ा है? कोई सफा। लोग कहते हैं हमारे मुतालिक ये नबी पाक की अजमत बयान नहीं कर सकते, ये कर दे ही नहीं। मैं अपने नबी की अजमत में एक जुमला कहना चाहता हूं और आपने वो जुमला सुनना है और पढ़ा लिखा तबका उस जुमले से इंशाल्लाह बड़ा सुरूर हासिल करेगा। उसकी गहराई में उतरना है आपने कि इसमें मेरे नबी की कितनी अजमत है। नबूवत का पहला दिन है, मेरा नबी कोहे सफा पे है, कौम नीचे खड़ी है,
पहले दिन मेरे नबी ने अपनी नबूवत की सदाकत के लिए कोई मौइजा नहीं दिखाया, बाद में हजारों मौइजे दिखाए, चांद दो टुकड़े हो गया। दरख्त अपनी जगह से चल के मेरे नबी के कदमों में आ गई। लुआब डालने से कड़वे कुएं मीठे हो गए। मेरे नबी की उंगलियों से पानी के फव्वारे जारी हो। मेराज से बड़ा मौइजा क्या है? कुरान से बड़ा मौइजा क्या? बाद में बड़े मौइजे, पहले दिन कोई मौइजा नहीं। मैं सच्चा नबी हूं, कोई मौइजा नहीं। मेरे नबी की अजमत को जरा देखिए। पहले दिन मेरे नबी ने अपनी नबूवत की सदाकत के लिए बतौर दलील पेश किया अपनी गुजरी हुई जिंदगी की पाकीज़गी को। और मक्के वालों, तुम में मेरे बचपन के यार मौजूद हैं ते बचपन दे यारां कोलू यारां दियां गल्लां लुकियों या नहीं होंदियां। तुम में मेरी जवानी के दोस्त मौजूद हैं ते जवानी दे दोस्तां कोलू दोस्तां दियां गल्लां छुपियों या नहीं होंदियां। तुहाडे विचों लोग भी मौजूद ने जिन्हां दे रल्ले मैं बकरियां चराइयां। खलवत में रहा, जलवत में रहा, सफर किया, रातें गुजारी, दिन गुजारे। तुमने मेरा बचपन देखा, लड़कपन देखा, जवानी देखी, शादी देखी, गमी देखी, मेरा दिन देखा, मेरी रात देखी, मेरी सुबह देखी, मेरी शाम देखी, मेरा सफर देखा, मेरा हजर देखा। और मक्के के लोगों, मेरी गुजरी हुई जिंदगी की सफेद चादर पर कोई दाग दिखा सकते हो? समझे ही नहीं हो कि इसमें मेरे नबी की कितनी अजमत है। कोई दाग दिखा सकते हो? मेरे नबी ने ये चैलेंज कहां खड़े होके किए? कोई ते पता कोई सफात है जी गल मैं दसना चाहना ताकि तुम्हें अहमियत का अंदाजा हो। मेरे नबी ने ये चैलेंज किया बचपन के यारों में खड़े होके, जवानी के यारों में खड़े होके, अपने शहर में। ये चैलेंज मेरे नबी ने जद्दे में नहीं किया, इराक में नहीं किया, शाम में नहीं किया, मदीने में खड़े होके नहीं किया, बचपन के यारों में खड़े हो। समझोगे नहीं समझे? नहीं समझे? गुजरात का आदमी हो, इत्थे मुंह काला करे, बदकारी करे, जिना करे, थाने में FIR दर्ज हो जाए, FIR चंगी त्रकड़ी होवे, पुलिस पीछे लग जाए, वो गुजरात से भागे कराची चला जाए, कराची जाके गेरू रंग के कपड़े पहने, जुल्फे बढ़ाए, दाढ़ी रखे, वहां एक दरबार कायम करे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, 500 दाने की तस्बीह पकड़ ले, कराची वालों को कहे मेरी तस्बीह देखो, मेरी दाढ़ी देखो, मेरिया जुल्फा देखो, मेरी पगड़ी देखो, मेरा जुब्बा देखो, मैं वली मनो, वली मैं वली हूं। हो सकता है कराची के लोग धोखा खा जाएं, मजा ते ताए जदा गुजरात विच खलो के आखे मन वली मनो। तो गुजरात के लोग कहें वली साहब जरा खलो जा, असा थाने चो FIR कढ़ा के ले आविए, तेरी विलायत दसना। हुण समझ आई तो मेरे नबी ने ये चैलेंज कहां खड़े होके किया? कमाल ये है मेरे नबी का, बचपन के यारों में खड़े होके किया। एक मसला यहां बताना चाहता हूं, उलमा तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे और अल्लाह करे अवाम भी समझ जाएं, मैं बिल्कुल इशारे में बात करूंगा। ये दावा कि मेरी जिंदगी की सफेद चादर पे कोई दाग, कोई धब्बा, गुनाह दिखा सकते हो? ये दावा खुदा दी कसम नबी तू सिवा कर भी कोई नहीं सकता।
समझ गए हो? नहीं समझा। कोई मौलवी तो खैर नहीं कर सकते, कोई पीर, कोई बुजुर्ग, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई फकीह, कोई शब जिंदादार, कोई तहज्जुद गुजार, कोई इमाम, ऐ नुक्ता मेरा, कोई इमाम ना एक ते ना 12, पता नहीं समझियो कि नहीं समझ। मैंने कहा ना मैं इशारे में बात करूंगा। कोई इमाम, कोई फकीह, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई ताबी, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस ये दावा नहीं कर सकता गुजरात के लोगों, मेरी बात को पल्ले बांध लो, माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक छोटे बड़े गुनाहों से मासूम होना ये सिर्फ इमामत की नहीं नबुव्वत की है। ये सिर्फ फकीह की नहीं नबुव्वत की है। हम अहले सुन्नत सहाबा को मासूम नहीं मानते। मन पता सी तुसी हैरान हो जाना, ये चंगा वकील है साहबा, लेकिन तुम्हें अहले सुन्नत का मसलक बता रहा हूं। हम अहले सुन्नत के नजदीक हम सहाबा को मासूम नहीं मानते हैं। वो इंसान है, उनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन है। पता नहीं मेरे लफ्ज पे गौर कीता जी कि नहीं, मैं बड़े तोल तोल के लफ्ज बोले। मैं क्या कह रहा हूं, वो गुनाह करते रहते हैं? नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? गुनाहों का सुदूर नबी से मुमकिन ही नहीं। बस फर्क ये में रखो, नबी से मुमकिन ही नहीं, सहाबा से मुमकिन है। जिंदगी के किसी मोड़ पे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह ने फरमाया मेरा सोना पैगंबर ए तेरे यार मासूम नहीं, इंसान ने गुनाह भी हो सकते ने, गलतियां भी हो सकदियां ने, लेकिन होए जो तेरे यार। इसलिए मैं कुरान में ऐलान करता हूं लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। तेरे यार गुनाह बाद में करते रहेंगे, मैंने माफी का ऐलान पहले कर दिया। लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, उनको मैंने क्या कर दिया है? इन्नल्लाह कद इत्तला अला अहले बद्रिन, मेरे नबी का फरमान है बुखारी में, इन्नल्लाह कद इत्तला अला अहले बद्रिन फकाला इमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम। इत्तला इसका हम उर्दू में माना करते हैं झांकना। इत्तला का क्या माना करते हैं? झांकना। लेकिन जो इत्तला में मजा है ना, खुदा दी कसम है, झांकण दे लफ्ज़ जो मजा वो सुरूर ही कोई नहीं। अल्लाह ने बदर के मेरे 313 यारों को झांक के देखा, लेकिन जो इत्तला का मजा है वो झांकने में नहीं है। पंजाबी में माना करता हूं, इंशाअल्लाह कुछ कुछ मजा आ जाएगा इत्तला का। अल्लाह ने मेरे बदर दे 313 यारां नू झाती पा के वेखिया। इत्तला क्या मैंने किया? मैंने छाती पा के वेखिया। इस तुम औखी पंजाबी दा मैं ना कर सकदा। ऐसे जो मियां अली दे लोग बैठे ने या मुजफ्फरगढ़ मुल्तान उस इलाके के, वो हमारी बोली है। अल्लाह ने बदर दे मेरे 313 यारां नू निझा के वेखिया, छाती पा के वेखिया, निझा के वेखिया, झांक के देखा। अबू बकर का दिल देखा, दिल में दीन की मोहब्बत देखी। फारूक आजम का सीना देखा,
उसमें तौहीद की मोहब्बत देखी, हैदर करार का दिल देखा, उसमें सुन्नत की मोहब्बत देखी, तो अल्लाह ने फरमाया ए मलू मा शे तुम कद गफरतु लकुम, आज के बाद जो दिल में आए करते रहो, मैं तुम्हारे को हिसाब ही को नहीं लेना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें क्या कर दिया है? कोई समझ आएगी कौन? मौला माफ करना कोई बड़ी गल है? वो तो तेरा वादा मेरे साथ भी है, मैं गुनाहों की माफी मांगू तो मुझे भी माफ कर देगा। इनके साथ भी है, कोई गुनाहों से माफी मांगे तू माफ कर देगा। फरमाया गलती पूरी हो लेने दो, सिर्फ माफ नहीं किया, वबद्दल तो सय्यातिकुम हसनात, मैंने नबी के यारों के लिए कानून बनाया, ये गुनाह भी करते रहेंगे, मैं इनके गुनाहों को भी नेकियां लिखता चला जाऊंगा। गुजरात वाले को गल समझ आती है, करन गुनाह, करन गुनाह, करे गुनाह, बन जाएं। ये आंधी गल समझ, ये नहीं आंधी तो बंदयालवी समझाने का फन जानता है। ये मेरा रुमाल है, ये पलीत हो गया, निजासत लग गई, पानी था खड़े में, बाल्टी में थोड़ा, मैंने रुमाल उसके अंदर डाला, अंदर ही अंदर मल दिया, बाहर निकाला, पाक हुआ। पानी भी क्या हो गया? इसका असर उसने कबूल कर लिया। मैं आया नहर के किनारे, मैं आया दरिया के किनारे, मैं आया समंदर के किनारे, मैंने रुमाल समंदर में, दरिया में, नहर में डाला, अंदर ही अंदर मल दिया, दरिया के अंदर, बाहर निकाला, क्या हो गया? पानी पलीत हो गया। इसमें से जो पलीती निकली, उसने पानी को नापाक नहीं किया। क्यों? पानी ज्यादा था। गुजरात के लोगों, मेरी और तेरी नेकियां दी मिसाल घड़े के पानी की तरह है, सहाबा की नेकियों की मिसाल समंदर के पानी की। उसमें कभी गुनाह आए भी सही, गुनाहों से मासूम होना, ये सिफ्त किसकी है? नबूवत की। जोर से बोलो, ये सिफ्त किसकी है? और नबी भी इसलिए गुनाहों से मासूम होता है कि उसकी पीठ पर रब का दस्ते शफकत होता है, वो उसे गुनाहों से बचाता है। मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ा सा नबी पाक की सीरत पे भी बात करूंगा, थोड़ी सी मैंने सहाबा पे कर ली है बात, तो इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। शेखुल कुरान का शागिर्द हूं और मेरे शेख की आदत थी भाई वो हर मौजू को थोड़ा थोड़ा बयान किया करते थे, टच करते जाते थे। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए और रहमतें अल्लाह नाजिल फरमाए। पैगंबर जो गुनाहों से मासूम होता है तो उसकी पीठ पर दस्ते रहमत और दस्ते शफकत किसका होता है? अगर मैं इसको यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, तवज्जो है आपकी। अल्लाह हर बंदे से कहते हैं गुनाहों के करीब नहीं जाना, मौलवी जी गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना, पीर साहब गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना, इमाम साहब गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना, ताबी साहब गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना। हजरत उस्मान तुसा भी सुनो, गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना। हजरत अली तुम भी सुनो, गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना। सारी कायनात को खिताब होता है गुनाहों के करीब नहीं जाना। और जब बारी आती है नबी की तो मेरा रब अंदाज बदल देता है। उस वक्त मेरा नबी ये नहीं कहता ओए नबियों गुनाहों के नजदीक नहीं जाना, उस वक्त अल्लाह कहता है ओ गुनाहों
तुसी कन खोल के सुनो, तुसी मेरे नबियां दे नेड़े नहीं जाना, तुसी मेरे नबियां दे नेड़े नहीं जाना। कुरान पाक की आयत है, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुआ वल फ़ाशा। 7 कमरे बंद हैं, अंदर खड़ी है, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दिए, चिटखनियां चढ़ा दिए। यूसुफ की जवानी है, ऊपर से हुस्न है, फिर पैगंबर की ताकत है जो 40 जंती मर्दों के बराबर होती है, और एक जंती मर्द की ताकत 100 मर्दों के बराबर, तो नबी की ताकत 4000 मर्दों के बराबर। जवानी है, शादी नहीं हुई, अलग कमरा है, मवाने रुकावटें सारी दूर हो गई हैं। दावत इन्होंने नहीं देनी, दावत जुलेखा दे रही है तलक। यूसुफ इत्थे वेखण वाली अख भी कोई नहीं, यूसुफ इत्थे दस्सण वाली जबान भी कोई नहीं, यूसुफ इत्थे रोकण वाला हाथ भी कोई नहीं। मिस्र दा सारा हुसन मेरे पीछे भजदा ते मैं तेरे पीछे भज रही हां, है तलक। हजरत यूसुफ ने कहा, माज़ अल्लाह, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बश में, जिसे वो शौक आए करे शिकार मुझे। ओ साख्या जे घिऊ सीधी उंगली नाल ना निकलिया, आज मन थोड़ी जी उंगली डिंगी करनी पौनी है। ए मौके रोज रोज नहीं लभदे, ते मैं मौका जाया नहीं करना चाहती। ताले लगे हुए हैं, चाबियां मेरी जेब में हैं, चाबियां ना हो तो ताले नहीं खुलते, ताले न खुले तो दरवाजे नहीं खुलते, दरवाजे न खुले तो बंदा बाहर नहीं जा सकता। हजरत यूसुफ को भी ये सारी बातें समझ आ रही थी, इसके बावजूद हजरत यूसुफ ने कहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहो, और लाचार की पुकारे सुनने वाले, बेकस की पुकारे सुनने वाले, मुझसे बड़ा बेकस कौन है। मेरी नबुव्वत की सफेद चादर को दागदार करना चाहती है। ये चाबियां, ये ताले, ये दरवाजे, ये कानून, ये कायदे, ये उसूल इसके लिए हैं या मेरे लिए हैं? मौला तेरे लिए तो कोई नहीं, तेरे लिए तो कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया, फिर हाथ रख के खलोता क्यों है? दरवाजे दी तरफ भाजना भजना तेरा काम में, ते तालियां नु तोड़ना मेरा काम। यूसुफ बाहर आ गए, बाहर आ गए। उसको जब कुरान बयान करता है तो कुरान क्या कहता है, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु सुआ वल फ़ाशा। हमने यूसुफ को बेहयाई के कामों से, बुराइयों से हटा दिया, यूसुफ को हटा दिया। फरमाया ना, लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सुआ वल फ़ाशा, मेरा यूसुफ उठाई खलोता रहा, असा गुनाहां नू परे हटा। तो नबी भी गुनाहों से मासूम होता है, तो उसकी पीठ पर दस्ते शफकत किसका है? एक और बात कहना चाहता हूं नबी की अजमत पर, है तवज्जो? इंसानी फितरत है, जब बच्चा पांव पे चलने लगा ना, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो रब ने उसे बाप की उंगली पकड़वा दी। अब बाप उस बच्चे की उंगली पकड़ के ना बाहर ला रहा है गली में, और उसकी तरबियत कर रहा है, पुत्र ए नाली है, जरा पैर चुक के रखना, ए पत्थर है, जरा ख्याल करके क्रॉस करना ही, ते पुत्र एक गली च जरा ख्याल करके आई। नौजवान लड़के स्कूटर बड़ा तेज चलाते हैं और आंखें बंद करके चलाते हैं, कि दाई स्कूटर तले ना आ जाए। और जब बच्चा घर में गया तो फितरत ने मां की उंगली पकड़ी। अब मां ने पकड़ ली उंगली, मां कहती है, मेरा पुत्र चूल्हे दे नेड़े नहीं जाना, आग दे नेड़े
नहीं जाना, माचिस दियां तीलियां नाल नहीं खेड़ना, कैंची ते छुरियां नू हाथ, इधर जाना है इधर नहीं जाना। ये जरा जुमला ज़हन में रखना है। जब मैं नतीजे पे पहुंचूंगा तो उलमा बड़ा मजा हासिल करें, बड़ा मजा आएगा। और आपको इब्तिदा में समझ ना आई तो फिर मैं चलो कोशिश करूंगा समझा दूंगा, लेकिन आप उलमा फौरन पहुंच जाएंगे। बाप ने कहा इधर जाना है इधर नहीं जाना, ये करना है ये नहीं करना। माँ ने कहा इद्दे जाना ही ते इद्दे नहीं जाना। हाले मेरा नबी पैदा नहीं होया, एक उंगली रब ने पहले ले ली, वालिद वाली उंगली ले ली, अभी मेरा नबी सही चलने के काबिल नहीं हुआ। रब ने दूसरी उंगली माँ वाली ले ली। मेरे रब ने कहा मेरा सोना मैं तेरी उंगली वालिद ते माँ दे हाथ च दे के नहीं टुराना, खुद नप के टुराना है। मैंने तुझे चलाना है, मैंने तेरी तरबियत करनी है, मैंने तेरी तरबियत करनी है। इस मसीह च नहीं जाना। वो तो नहीं समझी होगी, नहीं समझी। इस मसीह च नहीं जाना, इस मसीह च जाना। इन्हां दा जनाजा नहीं पढ़ना, इन्हां दी कबर ते नहीं खलोना। ते ए जेड़े तेरे गरीब यार हैं ना, ए जदा आवेन ना इन्हां नू सलाम करना ही। तो पैगंबर भी गुनाहों से मासूम होता है, तो उसकी वजह भी क्या है कि उसकी पीठ पर दस्ते रहमत और दस्ते शफकत किसका होता है। मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहता, ना मैं इस मूड में हूं, ना मेरी आदत है, लेकिन आपको दावत दे देता हूं, आप इस पर फिक्र करें। हमारे मुतालिक लोग कहते हैं ये मिलाद नहीं मनाते, कहते हैं इन्हें कभी मिलाद की गल ही नहीं की, विलादत की गल ही नहीं की, मिलाद की गल ही नहीं की। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, स्टेज पे जितने उलमा हैं, जितने अवाम हैं, खुदा की कसम उस एक जुमले में 1 घंटे की तकरीर बंद है। अगर उसकी तह में आप पहुंचे और समझे कि मैं जुमला कह क्या रहा हूं। बंदियालवी कहता है मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे, पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे। मीलाद ना मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ। वो झंडियों से नहीं मानेगा ना, वो मसनूई पहाड़ियों से नहीं मानेगा, वो छत पे चरागा करने से नहीं मानेगा, वो गाड़ियां सजाने से नहीं मानेगा। वो तब मानेगा जब जिंदगी उसकी सीरत के मुताबिक गुजारे। मीलाद न मनाओ, जिसका मीलाद मना रहे हो उसको मनाओ, उसको राजी करो, उसकी सीरत पे अमल करो, उसकी सुन्नत पे अमल करो, जिंदगी उसकी सीरत के मुताबिक गुजारो। मेरे नबी माई हलीमा के घर दूध पीते हैं। माई हलीमा का अपना बेटा भी है, बच्चा भी है, तो माई हलीमा ने दूध तकसीम कर रखा है। एक हिस्सा नन्हे मोहम्मद के लिए, दूसरा हिस्सा अपने बच्चे के लिए। माई हलीमा कहती हैं एक दिन मैंने नन्हे मोहम्मद को अपने हिस्से का दूध पिला के जब दूसरी तरफ डालने की कोशिश की तो नन्हे मोहम्मद ने मुंह पीछे कर लिया और बज़बाने हाल कहा, मां जी मैं 40 साल तू बाद लोगों नू आखना भिरावां दा हक न खाधा करो, और आज मैं अपने भाई का हक खा लूं। तो ये भी मिलाद का हिस्सा है कि कोई ना। तो बाजार में जब जुलूस आना चाहिए तो ताजरों को ये बात बतानी चाहिए कि कोई ना, ताजरों को कहना चाहिए कम तोलना, भाई का हक खाना है। बोलो हुण गल तुहाडे ते आई ते चुप कर जाओ, बोलो ना हुण जितने शहरी बैठे हो।
कम तोलना, भाई का हक खाना, गाहक को धोखा दे के सौदा बेचना, लोगों की जायदादें, मुरब्बे, जमीनें, प्लाटों पे कब्जे करना, राती बन्ने तरोड़ के पानी लाना। शाबाश, बोलो ना, ये भी मिलाद है। कभी कभी ये मिलाद भी बयान किया करो। तुम दुकानदार से कहते हो तुम आज 500 रुपए दी झंडियां लाइया, नबी राजी हो गया, ओ वादा पिछली सारी खत्म, अगली कैंची तैयार करो। ये 500 नाल नबी राजी होवे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुसा कश्मीर जरूर फतह करना। वो जिहड़ी शै साडे उत्ते सुटदे पे, थल्लों साडे उत्ते। ये भी मीलाद का हिस्सा है, लेकिन ये मीलाद थोड़ा जिहा औखा, ये मीलाद थोड़ा जिहा औखा, और झंडियां लगा के मीलाद मनाना थोड़ा सा। मेरे नबी मनवाना क्या चाहते थे? मेरे साथ साथ बोलिए, मेरी मंजिल भी जरा आसान हो जाए और आपका वक्त भी बच जाए। क्या इख्तिलाफ इस बात में था कि मक्के वाले अल्लाह को नहीं मानते थे और नबी पाक उनसे अल्लाह की जात मनवाना चाहते थे? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आधे नहीं पे हो तो कई बंदे ਨੂੰ पता कोई नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग समझते हैं भी अल्लाह की जात में के बारे में झगड़ा था, मक्के वाले अल्लाह को गलत, मक्के वाले अल्लाह की जात के कायल थे। काबा को कहते थे बैतुल्लाह, काबा को बैतुल्लाह। नबी पाक के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? अल्लाह को नहीं मानते थे तो बेटों के नाम अब्दुल्ला क्यों रखते थे? तीसरी दलील मैं इतनी खूबसूरत दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मुशरिक थे ना, मुशरिक कौन होता है जो क्या करे? शिरक करे। शिरक क्या होता है? शिरक की तारीफ करो। शिरक किसे कहते हैं? किसके साथ? अल्लाह के साथ। मखलूक में से किसी को शरीक बनाना। तो मालूम हुआ मुशरिक बंदा बनदा ताए जदा पहले अल्लाह नू मन्ने, नहीं तो शरीक किस नाल करना। समझे कि कोई नहीं समझे? अगर वो अल्लाह को मानता नहीं है तो शरीक किसके साथ कर रहा है? एक बात तय हो गई कि वो अल्लाह को। दूसरी बात, शायद वो अल्लाह की सिफतें नहीं मानते होंगे, खालिक, मालिक, राजिक, मोही, मुमीत, मुदब्बिर नहीं मानते होंगे। नहीं लोगों, वो अल्लाह की सिफतों को भी मानते थे। मानते थे कि नहीं मानते थे? क्यों मेरी बात आपने मानी? मैं कह रहा हूं कि वो अल्लाह की सिफतें मानते थे, आपने कहा मानते थे। क्यों मानी आपने मेरी बात? एक उसूल याद कर लो, तुसी हो जाओ सीधे, जितने अवाम यहां बैठे हो या जितने लोग हो, अल्लाह दी कसम है तुसी हो जाओ सीधे, मौलवी ते गज़ार सीधे हो जाओ। ये तुसी सीधे हो जाओ। जो मौलवी ने बात की, आपने आंखें बंद करके उस मौलवी की बात मान ली, कोई दलील नहीं पूछी आपने। जो मौलवी साहब कहते रहे, आपने कहा युमिनून बिल गैब। कोई बात है करने? मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं करना चाहता, जिच नहीं करना चाहता, सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि बारात जा रही थी और उसमें दूल्हा भी था, दुल्हन भी थी, और एक माई उसमें थी,
उसने पीरा ने पीर की नियाज नहीं दी, पीरा ने पीर को गुस्सा आया, उन्होंने पूरी बारात का बेड़ा गर्क कर। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह जी, बुजुर्ग होंदे ही हो जेड़े बेड़े गर्क करें, ये तो विलायत की पहली अलामत है जी, वली का काम ही यही है। आगे सुने, आगे 12 साल के बाद बेड़े को बाहर निकाला पूरी बारात समेत, दूल्हा भी जिंदा, दुल्हन भी जिंदे, बराती भी। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह जी, बुजुर्गों च बड़ी ताकत है जी। यार उनमें कोई स्कूल का पढ़ा लिखा नहीं है, कॉलेज का तालीम याफ्ता बंदा कोई नहीं है, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। जो ये पूछे, जरा तवज्जो करनी मेरी बात पे, जो ये पूछे मौलाना जब ये बारात डूब गई थी, गर्क हो गई थी, जहां से ये बारात चली थी वहां पता चला कि बाराती सारे डूब गए, मर खप गए, तो इनकी जो बीवियां थी इन डूबने वालों की, उन्होंने इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह कर लिए। 12 साल तो बाद तर के ये भी पहुंच गए। ये ते बड़ा रोला पे होना। उन्हें आख्या उन्हें जनानियां साड़ियां ने, उन्हें आख्या तुसा किथे मर खप गए सो, किथों निकल के आए हो, ये ते मामला थाने पहुंचे होना। लेकिन ना, युमिनून बिल गैब, जो दिल में आए वो करते रहो, जो दिल में आए वो करते रहो। ये किस्सा है, ये कहानी है जिसकी कोई दलील नहीं है। इसके मुकाबले में रब का कुरान है। अफसोस है मुझे लोगों पर जो कहते हैं वो भी मौलवी ने थे, ये भी मौलवी ने, वो भी ठीक ने थे। वाह, तेरे इंसाफ ते कुर्बान जावा भाई, क्या ही बात है, वो भी ठीक है। और मौलाना अहमद शुएब साहब हमारी जमात के मरकजी मुबल्लिग हैं, सरगोदा डिवीजन के जमाती अमीर हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, सारा साल तकरीरों पे निकले रहते हैं, बलूचिस्तान, सिंध और दूर दराज के इलाकों में, जेड़े इलाके असा ख्वाब विच भी कदी नहीं वेखे। आपके लिए काबिल एहतराम है, मेहमान है। मौलाना अहमद शुएब साहब कहते हैं हुन रात है, और क्या बज गया जी, 11:15 बजने वाली है, रात है। मैं भी आपका मेहमान हूं, आप मुझे भी कहते हैं हमारी जमात का खतीब है, मुबल्लिग है, तसनीफी खिदमात हैं, तकरीरी खिदमात हैं। मैं कहता हूं दिन है, वो क्या कहते हैं रात है, और मैं क्या कहता हूं दिन है। थोड़े च बंदा उठ के आदा तुसा दोनों सही है, हम क्या होते हैं जी, किसको झुठलाएं जी, हम वो भी आलिम ने थे, ये भी कोई अकल दी गल है यार। खुदा के लिए दिन और रात में तो फर्क कीजिए। एक तरफ किस्से, कहानियां हैं, लायानी बातें हैं, मौजूद रिवायतें हैं, दूसरी तरफ कुरान का सूरज है। तुम कहते हो दोनों ठीक है, बड़े ताज्जुब दी गल। कितने तुम यहाँ बाबू टाइप जो लोग बैठे हो, ये साडे काबू च बड़ी मुद्दत तो बाद आंदे हो, वरना ते साडियां तकरीरां च अक्सर अक्सरियत तुलबा दी होंदी। वो तुलबा पढ़ी पढ़ाई कौन है, तो तुम लोग जो शहरी लोग हो बैठ के कहते हो ना बड़े फार्मूले, जब 4-5 इकट्ठे होते हैं बैठक में तो कहते हैं ये गुड़ देने बंदा मर्दा होवे ते जहर जरूर देनी है जी। दूसरा आया, उसने कहा सप भी मर जाए ते लाठी भी। तीसरा आया, उसने कहा अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी के मसलक को।
और इनमें से जो सबसे बड़ा लाल बुचक्कर है ना, समझदार, बड़ा दाना समझदार लाल बुचक्कर, वो कहता मियां तू अपनी नबेड़ जिथे कोई लगा होया लगा रहना, तुझे पराई क्या पड़ी, हाँ तू अपनी नबेड़। ये समझदार बंदा है लाल बुचक्कर। पता है आपको ये कौन था? ये एक देहात का बड़ा सियाना आदमी था, कहता था मैं बड़ा समझदार हूं लाल बुचक्कर। एक बंदा दरख्त उते चढ़ गया, चढ़ते गया, उतरने का तरीका नहीं आता था। लोग लाल बुचक्कर के पास गए, वे बंदा दरख्त पे चढ़ गया तो उतर नहीं सकता, कोई तरीका दस। उस आकर मिनट रस्सा लेके आओ, वो रस्सा ले आए, एको उन्हें सुट दिता। उस बंदे ने फाड़ ले, कमर के साथ बांध, कस के बन ले, उन्हें बंद दिता, खींचो, उन्हें खींचा, धड़ाम जमीन पे, इन्ना लिल्लाहि। उन्हें क्या लाल बुचक्कर जी बंदा मार दिता ही। उसा क्या इसकी अपनी किस्मत यार, मैं ते सैकड़ों बंदे खूह चू इन्हें ही बाहर कटे। ये होता है लाल बुचक्कर। तू मियां अपनी नबेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, जिथे कोई लगो या लगा रह दो। मैं बयान किया करता हूं अक्सर तकरीरों में कि मेरी आदत है कि मैं तकरीर करके घर वापस पलट जाया करता हूं। जिस तरह मौलाना मोशैब साहब की आदत है कि 7-7 दिन सफर में रहते हैं,